Hello viewers, welcome back to YouTube channel Face Quantum Classes. In this video, we will discuss one of the applications of Fermat's principle, that is to deduce Lenz-Maker formula 1 by f is equal to mu minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2 using Fermat's principle. It is lecture 4 of class BSc part 2 physics of geometrical optics. To deduce Lenz-Maker formula, suppose AB be a thin convex lens of focal length a small f, having radii of curvature r1 and r2 of its two spherical surfaces, that is ACB and ADB respectively. Let mu be the refractive index of the material of this thin convex lens. Let P be a point object whose real image is formed on the other side of the convex lens due to refraction through the thin convex lens. That is, point image I is formed, that which is real image of the point object P, which is placed left to the convex lens at the object distance u. Let V be the image distance formed at point I of the principal axis of this lens. Now we have to apply Fermat's principle to deduce Lenz-Maker formula. According to Fermat's principle, optical path covered by the light should be either maximum or minimum or stationary, that is constant. Here in this case, there are two light rays which are refracted through the lens. First light ray falls obliquely at point A of the convex lens, and after refraction it is focused at point I. This refraction takes place at the vertex or end A of the convex lens, while another light ray, which is the case of the normal incidence, passes through its optical center, and after refraction it goes undeviated and focused at or meets at point I again, as first light ray have also met at point I initially after refraction through the thin lens at its boundary edge capital A. Now using Fermat's principle, the optical path covered by two light rays should be constant, should be equal, that is should be equal, and in that case using Fermat's principle का यूज करना है. Fermat's principle, optical path PAI covered by the first light ray पॉइंट ऑब्जेक्ट P से प्रोड्यूस होकर के तिरछे ढंग से ऑब्लिकली कॉन्वेक्स लेंस AB के पॉइंट A पर इंसिडेंट किया था, और रिफ्रैक्शन के बाद लगभग एयर में यह लाइट रे ऑप्टिकल पाथ कवर कर रहा है लेंस से होकर के, क्योंकि यहाँ पर भी एज से होकर के, यहाँ लेंस के एज A से होकर के लाइट एज को टच करते हुए सीधे रिफ्लेक्ट होकर के आई पर फोकस हुई है. तो लगभग ये जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है पाथ, ऑप्टिकल पाथ PAI, ये पाथ एयर में ही है, जबकि सेकेंड पाथ
जो लाइट रे का है, इसके प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से होकर के, लेंस के ऑप्टिकल सेंटरों से होकर के, POI जो सेकेंड लाइट रे है वह लेंस के मटेरियल से भी होकर के, लेंस के सेंटर से मतलब लेंस के मिडल पार्ट से भी होकर के पास कर रही है। इसलिए इस पाथ के इक्वल करने के लिए, एयर में इसके पाथ को इक्वल करने के लिए यह पाथ, ये डिस्टेंस CD इसमें से माइनस करना होगा। लेकिन चूँकि लाइट रे लेंस मटेरियल से भी, मीडियम से भी होकर के पास कर रही है, तो इसमें ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे थ्रू द लेंस थ्रू इन कवरिंग डिस्टेंस CD इज म्यू टाइम CD। हमने बतलाया था कि ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय द लाइट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मल्टीप्लाइड बाय पाथ कवर्ड बाय द, या लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे। तो यहाँ पर पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे इन कवरिंग डिस्टेंस CD इज म्यू टाइम CD बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल इज म्यू। लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ म्यू है, जो लेंस मेकर फार्मूला में यूज हुआ भी है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 माइनस R1 माइनस 1/R2। तो नाउ यूजिंग फर्मर्स प्रिंसिपल, path of light rays should be stationary. So both paths covered by the light rays, two light rays PAI and should be equal to POI using Fermat's principle, because path covered by the light ray should be either maximum or minimum or stationary. Stationary means constant. तो कांस्टेंट कब होगा? जब पाथ, ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे, फर्स्ट लाइट रे PAI इज इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय द सेकेंड लाइट रे POI। ऑप्टिकल यूजिंग फर्मर्स प्रिंसिपल इन फिगर 1, that is in case of refraction at a thin convex lens, we have optical path covered by the light ray PAI equals to optical path covered by the second light ray, that is through its optical center of the lens, that is POI. This optical path covered by the light ray through the lens, through the center of the lens is, optical center of the lens is POI. That is optical path PAI is equal to optical path POI। और ऑप्टिकल पाथ PAI कितना होगा? PA प्लस AI, PA प्लस ऑप्टिकल पाथ PAI इज इक्वल टू PA प्लस AI, और ऑप्टिकल पाथ POI इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं POI को टोटल पाथ PI माइनस CD, जो लेंस से होकर के ये पास किया है तो ये माइनस CD, और ये जो PAI है वह लेंस के बाउंड्री एज ए से होकर के, मतलब एयर से होकर के पास, ऑलमोस्ट एयर से होकर के पास किया है। तो PI माइनस CD, माइनस कर लेंगे CD, लेकिन जब CD से होकर के लाइट रे लेंस से होकर के पास किया है तो ऑप्टिकल पाथ माने ये मीडियम से भी, लेंस के मीडियम से भी पास किया है। तो लेंस का मीडियम अगर ग्लास है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर म्यू है। तो ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे इज म्यू टाइम द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट रे इन दैट मीडियम, तो म्यू टाइम CD हो जाएगा। तो प्लस इसमें ऐड करना होगा म्यू टाइम CD, और PA प्लस AI इक्वल्स टू PI, और यहाँ पर CD कॉमन है, ये टर्म प्लस म्यू माइनस 1, CD कॉमन कर लिए, और ये टर्म पॉजिटिव है म्यू इंटू CD, तो म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई CD। अब हम PA का वैल्यू यहाँ पर पुट करें। PA का वैल्यू PA कितना हो जाएगा? यूजिंग इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल PA स्क्वायर इजकल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। और सपोज करते हैं कि जो फर्स्ट लाइट रे इंसिडेंट किया है पॉइंट A पर लेंस के, वह इसके ऑप्टिकल सेंटर से कितने हाइट पर किया है? H हाइट पर। फर्स्ट लाइट रे पॉइंट ऑब्जेक्ट O से प्रोड्यूस होकर के फर्स्ट लाइट रे जो कॉन्वेक्स लेंस के पॉइंट A पर इंसिडेंट किया है वह लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से H हाइट पर किया है। तो इसलिए PA स्क्वायर इजकल टू OP स्क्वायर PO स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, दैट इज U स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और PA इजकल टू U स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज पावर हाफ, प्लस AI इज AI square in triangle in the right angle triangle AOI, we have AI square is equal to
OA square plus OI square, that is H square plus V square. DI is the image distance and OP is the OI is the image distance, and image distance is taken from the optical center of the thin lens, and OP is the object distance. So AI square is equal to AO square plus OI square, that is H square plus V square plus H square, root under, that is power half. Root means power half, that is V square plus H square under bracket में H square power half equals to PI. This distance is PI. PI is OP plus OI, that is U plus V. PI is OP plus U plus V हो जाएगा, इक्वल्स टू, ये RHS में है सेकेंड ऑप्टिकल पाथ POI, जिसे लिखा जा सकता है PI माइनस CD प्लस म्यू CD, दैट इज PI प्लस म्यू माइनस 1 CD कॉमन है, तो ये RHS में है, तो हम लिख सकते हैं PI को PO प्लस OI, दैट इज U प्लस V, ये फर्स्ट टर्म हो गया, और सेकेंड टर्म में है प्लस म्यू माइनस 1 एंड CD इजकल टू CO प्लस OD लिखा जा सकता है, म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई mu minus 1 multiplied by CD can be written as CO plus OD या CO plus DO, CO plus OD इक्वल्स टू, और यहाँ पर U को हम बाहर कर लेंगे, U स्क्वायर को बाहर करेंगे तो स्क्वायर रूट है, हाफ है स्क्वायर रूट, तो केवल U बाहर होगा, U, और यहाँ 1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म में U स्क्वायर नहीं है तो इसमें डिवाइड हो जाएगा H स्क्वायर बाई U स्क्वायर, और ये पावर हाफ रहेगा बाहर में, और यहाँ पर भी बाहर कर लेते हैं सेकेंड टर्म से, AI इक्वल टू V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हाफ फिगर से, यहाँ पर भी V स्क्वायर बाहर करने का मतलब V स्क्वायर का पावर हाफ, दैट इज V बाहर करेंगे, 1 प्लस H स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, इसका भी पावर हाफ हो गया, इक्वल्स टू U प्लस V प्लस RHS में म्यू माइनस 1. अब CO इक्वल टू CO equal from the using the geometry we have CO equal to H square equal to, in for the first surface, refraction at the first surface, we have H square, that is AO square, H square equal to CO into 2R1. Therefore CO equal to H square by 2R1 using the geometry. CO is equal to H square upon 2R1. Geometry का यूज करने पर CO square is equal to H square. H is the height at which the first light incident at point A of the convex lens above the optical center. So for the first surface we have H square, that is AO square is equal to CO multiplied by 2R1, where R1 is the radius of curvature of the first spherical surface ACB of the lens. तो इसलिए CO distance is equal to H square by 2R1, ये हमको ज्योमेट्री का यूज करके ये रिलेशन हमें मालूम हो गया, तो यहाँ पर CO की जगह लिखेंगे H स्क्वायर अपॉन 2R1, और इसी ढंग से सेकेंड सरफेस के से रिफ्रैक्शन के लिए, मतलब सेकेंड स्फेरिकल सरफेस ADB से रिफ्रैक्शन के लिए हम ऑब्टेन कर सकते हैं DO इजकल टू H स्क्वायर बाई 2R2, दैट इज H स्क्वायर इजकल टू DO इंटू 2R2. सेकेंड सरफेस के लिए भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो DO की जगह हम लिख सकते हैं हम, या OD की जगह H स्क्वायर बाई 2R2, H स्क्वायर यूजिंग द ज्योमेट्री 2R2. और यहाँ पर अब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हैं, 1 प्लस एक्स का पावर n, x टू द पावर n इजकल टू 1 प्लस nx, तो यहाँ n मल्टीप्लाई हो जाएगा, और u 1 प्लस 1/2, यहाँ सेकेंड जो फैक्टर है, जो टर्म है
बाइनोमियल में एक टर्म तो 1 होता है और सेकेंड वेरिएबल x की जगह एच स्क्वायर बाई यू स्क्वायर है, तो उसके पहले हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 इंटू एच स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस भी 1 प्लस यहाँ भी 1/2, यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के बदले में एच स्क्वायर प्लस भी अपॉन भी स्क्वायर है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वायर अपॉन भी स्क्वायर इजकल टू यू प्लस भी यू प्लस भी प्लस फर्स्ट टर्म है RHS का यू प्लस भी प्लस म्यू माइनस वन और यहाँ पर एच स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एच स्क्वायर और 2 भी बाहर आ जाएगा, 1/r1 ब्रैकेट के अंदर सेकेंड टर्म में एच स्क्वायर बाई 2 बाहर कर लिए हैं तो 1/r2 अब LHS के टर्म को ब्रैकेट को यहाँ हटाते हैं, ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, मतलब u को दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म से, ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म से, और फिर भी को भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो u इंटू 1 दैट इज इन LHS वी हैव u इंटू 1 दैट इज u प्लस u मल्टीप्लाइड बाई 1/2 एच स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा एच स्क्वायर बाई 2u, u से मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में, तो u से न्यूमरेटर के u से डिनोमिनेटर का एक u का पावर कैंसिल हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बाई 2u, तो u को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करने पर हमें एच स्क्वायर अपॉन 2u। अब यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट में भी है, तो भी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो डेट इज भी, यहाँ भी ब्रैकेट हटाएंगे। अब भी को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी और यहाँ डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर का एक टर्म है, तो एक पावर डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एच स्क्वायर बाई, यहाँ केवल नीचे में एक पावर भी का बचेगा, एच स्क्वायर बाई 2 भी, दैट इज एच स्क्वायर बाई 2 भी से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकेंड टर्म में एच स्क्वायर बाई 2 भी, एच स्क्वायर अपॉन 2 भी, ये LHS में हो गया इस इक्वेशन के। और RHS में हमारा जो टर्म है उसको यहाँ PI दैट इज PO प्लस OI दैट इज U प्लस भी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज डिस्टेंस, PI इजकल टू, तो उसकी जगह U प्लस भी है, तो RHS में U प्लस भी प्लस म्यू माइनस 1 एच स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई म्यू माइनस 1 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ पर एच स्क्वायर बाई 2u और यहाँ पर भी एच स्क्वायर बाई 2 भी, u प्लस भी को हम एक साथ कर लेते हैं और u प्लस भी, जिससे कि RHS में u प्लस भी टर्म है उसे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ प्लस एच स्क्वायर बाई 2 और यहाँ भी एच स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, एच स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू u प्लस भी प्लस एच स्क्वायर u प्लस भी, और सेकेंड टर्म में RHS का फर्स्ट टर्म u प्लस भी, और सेकेंड टर्म में एच स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। अब यहाँ पर LHS में u प्लस भी, RHS में भी u प्लस भी कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट, बोथ टर्म्स आर कैंसिल आउट, और LHS में फिर यहाँ पर एच स्क्वायर बाई 2 और यहाँ भी एच स्क्वायर बाई 2 है, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमें LHS में टर्म जो बचा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1/r2। अभी तक कोई इक्वेशन हमने यूज नहीं किया है, अब इसे इक्वेशन 1 यूज करते हैं। हालांकि इक्वेशन 1 यूज किया जा सकता था, फॉर्मेट प्रिंसिपल जब अप्लाई किए थे, ऑप्टिकल पाथ PAI इजकल टू ऑप्टिकल पाथ POI, वहाँ पर इक्वेशन 1 यूज कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं है, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 देते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं, इफ़ u इजकल टू इन्फिनिटी, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो P था वह अगर इन्फिनिटी पर हो तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर।
लेंस के फोकस पर। तो इफ यू इजकल टू इन्फिनिटी v इजकल टू एफ, इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ पर फोकस पर हो जाएगा। और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है, स्मॉल एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो इफ यू इजकल टू इन्फिनिटी v इजकल टू एफ, सो इक्वेशन 1 बिकम्स 1 by f, v इजकल टू एफ, u इजकल टू इन्फिनिटी इजकल टू म्यू माइनस 1 by r1 प्लस 1 by r2। अब 1 by infinity इजकल टू 0, so we have और 1 by f equals to म्यू माइनस 1 by r1 प्लस 1 by r2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब लेंस मेकर फार्मूला में हमारा टर्म 1 by f इजकल टू म्यू माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2 है। अब यहाँ पर न्यू साइन कन्वेंशन का हम यूज कर लेंगे। यहाँ पर थिन लेंस है, जैसा कि ये थिन लेंस से भी हम यूज किए थे फिगर में। तो इसका फर्स्ट सरफेस है जिसका ऑप्टिकल सेंटर C है, पोल C है, और सेकेंड स्फेरिकल सरफेस का पोल D है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका राइट साइड में होगा, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस R1। और ये फर्स्ट सरफेस के लिए। और ये सेकेंड सरफेस के लिए क्या होगा, सेकेंड सरफेस के लिए जिसका पोल सेकेंड सरफेस का स्फेरिकल सरफेस का पोल D है, तो सेकेंड सरफेस के लिए क्या होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वह लेफ्ट साइड में होगा, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 नेगेटिव हो जाएगा। R2 इजकल टू माइनस R2 और R1 इजकल टू प्लस R1 यूज करना होगा। तो यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन वी कैन पुट हेयर R1 इजकल टू प्लस R1 एंड R2 इजकल टू माइनस R2 यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन। और तब हम लेंस मेकर फार्मूला ईजिली ऑब्टेन कर पाएंगे यूजिंग न्यू साइन कन्वेंशन। Using the new sign convention, we have convention putting R1 equal to plus R1 और R2 equal to minus R2 in equation 2, we obtain 1 by f equal to mu minus 1 by plus R1, that is 1 by R1, और R2 के जगह पर माइनस सेकेंड स्फेरिकल सरफेस का, यहाँ जैसा हमने दिखलाया भी है, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस का, लेंस के सेकेंड स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव हो जाएगा, R2 इजकल टू माइनस R2। जबकि फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस के राइट साइड में है। तो R1 इजकल टू प्लस R1 और R2 इजकल टू प्लस R2 इस इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद 1 by R1 और यहाँ पर प्लस R2 की जगह माइनस R2, 1 by R2, and this is equation number 3, and which is lens maker formula. This is lens maker formula 1 by f equal to mu minus 1 by R1 minus 1 by R2। इसे लेंस मेकर फार्मूला, लेंस निर्माण सूत्र भी कहा जाता है, जो कि हमें डिड्यूस भी करना था। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला विच इज लेंस मेकर फार्मूला। दिस इज लेंस मेकर फार्मूला, राइट डाउन। और जिसको हमने फॉर्मर्स प्रिंसिपल के यूज से डिड्यूस किया लेंस मेकर फार्मूला। तो ये क्वेश्चन भी जो एप्लीकेशन है फॉर्मर्स प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन है, यह भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स में, ऑल इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनके एग्जामिनेशंस में ये फार्मूला भी डिड्यूस करने के लिए पूछा जाता है। फॉर्मर्स प्रिंसिपल पर कई ढंग के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन, जैसे कि स्टेट एंड एक्सप्लेन फॉर्मर्स प्रिंसिपल। सेकेंडली एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग फॉर्मर्स प्रिंसिपल, ये भी हमने कर चुका हूँ इसके दोनों टाइप के क्वेश्चन को। और एक तीसरा टाइप का भी क्वेश्चन लेक्चर 3 में मैंने डिस्कस किया था, स्फेरिकल मिरर फार्मूला यूजिंग फॉर्मर्स प्रिंसिपल, वह भी फॉर्मर्स प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन था। और यहाँ पर लेंस मेकर फार्मूला को भी हमने, या अनदर फार्मूला जो फॉर्मर्स प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है, इसको डिड्यूस किया। तो ये क्वेश्चन भी लेंस मेकर फार्मूला भी यूजिंग विद द हेल्प ऑफ यूजिंग फॉर्मर्स प्रिंसिपल डिड्यूस करने के लिए अक्सर पूछा जाता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशन में, BSc पार्ट 2 फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर्स में।
तो दिस इज लेंस मेकर फार्मूला। और इसी लेंस मेकर फार्मूला के डेरिवेशन के साथ यह लेक्चर 4 बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स का, जो कि फिजिक्स ऑनर्स सब्सिडियरी तथा जनरल कोर्सेज के लिए है, समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें तथा सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि यह यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार आपको घर बैठे बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ट्यूशन के, यहाँ तक कि लॉकडाउन के पीरियड में जब क्लासेस नहीं भी हो रहे हों तो घर बैठे आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करता है। और उसके साथ ही पूरे टॉपिक का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी क्वेश्चन का पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज, कंसेप्चुअल आंसर उसका आपको प्रोवाइड करता है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।